بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھڑکنوں کا محافظ، منتہا چوہان، قسط نمبر 13۔ آج فارس اور نور العین کا ریسیپشن تھا۔ سبھی خوش تھے ماں سوائے کبیر شاہ اور اس کی فیملی کے۔ ابرار کو کافی گہری چوٹیں لگی تھیں۔ یہ وہ زخم تھے جنہیں شاید وقت بھر دیتا، لیکن دل کی اذیت اور یہ تڑپ کہ آئین کسی اور کی ہو گئی، اس بات نے اسے مکمل خاموش کر دیا تھا۔ اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ اس نے تو دل اور جان سے آئین کو چاہا۔ عفان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا رستہ کلیئر ہوا تھا، لیکن فارس نے آ کے ایسا رستہ روکا کہ وہ منہ کے بل گرا تھا۔ ہاسپٹل میں لیٹا وہ زخموں سے چور نیند کے انجیکشن سے جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ کسی خاتون نے سٹیج پر آتے آئین کے حسن کی تعریف کی تو وہاں موجود الماس بیگم کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگا گیا۔ آئین کی نظریں نیچی ہی رہیں۔ آج صبح جو ہوا اس کے بعد اسے اپنی زندگی بہت مشکل لگ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی فارس شاہ کے سامنے خود کو بے قصور ثابت نہیں کر پائی، جس کا اسے بے انتہا دکھ تھا۔ زیان اور فارس شادی ہال میں موجود سیکیورٹی کی چیکنگ کر رہے تھے۔ وہ مطمئن تھے، ہر ایک پر نظر تھی۔ دونوں کو ایک حوالہ والے شخص کا انتظار تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا فارس پہ وار کرنے کے لیے، اس لیے وہ مکمل الرٹ تھے۔ آئین کے پاس سے دعا اٹھ کر سٹیج سے نیچے اتری کہ لائٹس آف ہو گئیں۔ فارس اور زیان جو سٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے فوراً چوکنا ہوئے۔ لوگوں کی اونچی آوازیں اور دھکم پیل شروع ہو گئی۔ فارس اور زیان بیچ راستے ہی اٹک رہ گئے تھے۔ بھائی آپ سٹیج پر جائیں، میں لائٹس چیک کرتا ہوں، زیان کہتے ساتھ ہی وہاں سے نکلا۔ ابھی زیان کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ لائٹس آ گئیں۔ سٹیج پر ہلڑ مچا ہوا تھا۔ فارس بھاگنے والے انداز میں سٹیج پر گیا۔ دلہن کی جگہ خالی تھی۔ ہائے یہ کیا ہوا، دلہن کہاں گئی؟ سبھی کی زبانوں پر یہی سوال تھا۔ فارس کو خود کا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف دیکھ لیا لیکن آئین کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ اپنے اعتباری آدمی جو ابرار پر نظر رکھے ہوئے تھے ان سے رابطہ کیا، ابرار کا پوچھا، لیکن ان کے یہ بتانے کہ وہ ہاسپٹل میں ہی ہے۔ فارس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ یا اللہ کیا کروں؟ بے اختیار فارس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پولیس والے وہاں پہنچ چکی تھی اور اپنی صحیح کوشش کر رہی تھی۔ فوٹیج چیک کی گئی، جہاں ایک ماسک والے آدمی کا بیک ڈور سے نظر بچا کر اندر جاتا دکھائی دیا۔ یہ کون ہے؟ فارس نے فوراً پوچھا۔ ہو نہ ہو نور کے غائب ہونے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، فارس نے یقین سے کہا، جبکہ زیان ابھی تک کمپسل کھڑا تھا۔ اس شخص نے کوئی اور نہیں زیان کا ہی ماسک پہنا ہوا تھا۔ مطلب وہ زیان کا کوئی دشمن تھا جسے اس کے اپنوں کی خبر مل گئی تھی۔ زیان گہرا سانس کھینچتا ہوا وہیں دماغ لڑانے لگا، لیکن اس کا شک کسی پر نہیں جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ خفیہ ایجنٹ ہے، پر کوئی کیسے اس تک پہنچ سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ چلو زیان، فارس نے زیان کو پکارا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ بھائی، زیان نے ہارے ہوئے انداز میں فارس کو پکارا۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ کیا ہوا؟ فارس ٹھٹرا۔ وہ میرے بارے میں سب جانتا ہے، زیان نے ماسک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ فارس نے ایک کڑی نظر زیان پر ڈالی اور اس کے قریب ہوا۔ وہ جو کوئی بھی ہے لیکن وہ مجھے نہیں جانتا، زیان کے کان میں سرگوشی کرتا وہ زیان کو بہت ہمت دے گیا تھا۔ چلیں، فارس نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ یس باس، زیان مطمئن ہوتے فارس کے پیچھے ہی ہو لیا۔ ایک بار پھر سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ آئین کا غائب ہونا سب پر پہاڑ بن کے گرا تھا۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آئین کہاں جا سکتی ہے۔ ماریہ شاہ کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ دلاور شاہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، پولیس سے مسلسل رابطے میں تھے، جبکہ فارس اور زیان کہاں ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آئین کا ہاتھ سر پر گیا، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابھی ہوش میں آتے اسے کچھ وقت اپنے حواس بحال کرتے لگا۔ نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، وہ کوئی کال کوٹ رہی تھی۔ فوراً وہاں سے اٹھی۔ اندھیرا ابھی بھی بادستور تھا اور اندھیرے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ وہاں صرف ایک بند کھڑکی تھی۔ وہ اس بند کھڑکی کے پاس آئی۔ کوئی ہے؟ پلیز ہماری مدد کرو۔ وہ کھڑکی کافی اونچی تھی، آئین وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ یا اللہ، ہم کہاں پھنس گئے؟ آئین کی آنکھیں آنسو سے بھیگنے لگی۔ کافی شور مچانے کے بعد بھی وہاں کوئی نہ آیا تھا تو تھک ہار کر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی بیٹھ گئی۔ اوہ، میں فارس شاہ، تم سے وعدہ کرتا ہوں تم خود اس وقت کا سب کے سامنے اعتراف کرو گی اور بتاؤ گی سب کو کہ سب کچھ، اور اس دن تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلاؤں گا۔ فارس کے کہے الفاظ اس کی سماع سے پھر سے ٹکرائے تھے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ فارس شاہ، دیکھو آج ہم یہاں سب سے دور ہیں اور کب موت کی نیند سو جائیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر آنے والے کو لرزیدہ نظروں سے دیکھا۔ کون ہو
तुम, आयन ने डरते हुए पूछा, और वो अंधेरे में उसका चेहरा न देख पाई थी। तेरे इश्क में डूब गए हैं हम, वरना आदमी थे बड़े काम के। एकदम रोशनी हुई और सामने वाले का मास्क से छुपा चेहरा वाजे हुआ। आयन ने पलकें झपकाई, बार बार देखना चाहा, लेकिन वो वही था जिसने इस रात हमला किया था। हाँ, लेकिन नज़रों का धोखा नहीं था। लोकेशन का पता चला? फारस ने अरसम से पूछा, जो जियान और फारस के साथ गाड़ी में था और पुलिस की 2 और गाड़ियां इन्हें फॉलो कर रही थी। जियान ड्राइव कर रहा था। जियान, यहाँ से लेफ़्ट लो। अरसम के कहने पर जियान ने गाड़ी मोड़ी। फ्रंट सीट पर बैठे फारस ने गन निकालकर इसे चेक किया। आज ये मुझसे बच नहीं पाएगा। भाई भाभी इसके कब्जे में है। जियान ने कुछ बावर कराना चाहा। फारस ने एक नज़र इसे देखा। नूर को कुछ नहीं होगा, यकीन से कहता वो सामने विंडो स्क्रीन के पार देखने लगा, जहां उसके मंजिल बस आने ही वाली थी। फ़ोन उठाओ। डैम, कबीर शाह मोबाइल पे कॉल किए जा रहे थे। वो सब हवेली वापस आ चुके थे, तो सभी परेशान भी थे, और इन सब में नामहसूस अंदाज से कबीर शाह का गायब होना दिलावर शाह से छुपा न रह सका था। आखिर ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? कबीर शाह खुद से मुखातिब था। कौन फ़ोन नहीं उठा रहा? कबीर शाह। दिलावर शाह की आमद पर वो बुरी तरह से चौंके थे। दिलावर शाह की जानिब मुड़े। कौन हो तुम? मास्क वाला वो शख्स अंदर आया। आयन को इसके मास्क से खौफ महसूस हुआ, और सामने आते इसने अपना मास्क एकदम से उतारा। अब आयन के मुंह से टूट फूट के अल्फाज निकले थे। वो बेयकीनी से इसे देखती खड़ी हुई थी। हा हा, घायल ना, धोखा। बल्कि तुम्हारी जगह कोई भी होता वो धोखा खा ही जाता। वो घुमा फिरा के बात करता, साथ मुस्कुरा भी रहा था। आयन ने गौर किया, वो अबरार ही तो था या कोई और। इतना हैरान ना हो जाने मन, हम नहीं हैं तुम्हारे सनम, वो शेर कहता फिर से हंसा। कौन हो तुम? आयन को इससे डर महसूस हुआ। उसकी हंसी को ब्रेक लगा। इसने गन निकाली। आयन को गन देखकर झटका लगा। बहुत जालिम होती है ये मोहब्बत, कहीं का नहीं छोड़ती ये कमबख्त। जानती है, बहुत समझाया इसे मैंने, लेकिन नहीं सुना कुछ भी इसने गन लोड की। आयन की सांस रुकी। वो इसे मारने के दर पर था। तुम हमें क्यों नहीं मारना चाहते हो? आयन ने हिम्मत करते हुए पूछा, तो एक लम्हे के लिए चौंका। ओह, मुंह पे हाथ रखा और हैरान होने की एक्टिंग करने लगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जो तुमने कहा अभी, वो हर बात ऐसे शेर के टुकड़ों में कर रहा था कि आयन को कोफ्त हुई। चलो, तुम्हारी ये भी ख्वाहिश पूरी किए देते हैं। ज़ख्म अपने फिर से उधेड़ देता हूँ। क्या ही हसीन इत्तेफाक था कि इसके साथ एक जुड़वा था। हाँ, फारस के साथ तूफ़ान, अबरार के साथ अरबाज। आयन की आंखें हैरत से पूरी खुल गई। लेकिन किस्मत देखो, सबको सब कुछ मिला, बस अरबाज रह गया अकेला। वो अफसुर्दा हुआ। मेरे वजूद को छुपाया गया, मुझे सबकी नज़रों से बचाया गया। क्या कसूर था मेरा? बस एक भाई था मेरा। दर्द जब हद से बढ़ा, मुझसे कत्ल वो हुआ। आयन की आंखें भीगी जा रही थीं। वो किसके कत्ल की बात कर रहा है? जान गया था वो राज मेरा, दूल्हा बनना था इसे तेरा। वो जो इसे देखे जा रही थी, उसकी इस बात पर आयन का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का। बुलाया इसे सुहानी सुबह, बता दिया किसी को, वो वहाँ पहुँचा। बहुत समझाया, मत कर, ज़िद्दी था बहुत। मानता वो, फिर क्यों कर। और फिर आयन की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। आयन डर के मारे कांपे जा रही थी। चली एक गोली हुई जो दिल के पार। उसने गन आयन के दिल पर तानी। वहीं आयन के इसकी बात सारी समझ में आ गई थी। तुम अरबाज हो, अफान के कातिल, हकलाते हुए बोली। बहुत जल्द समझ आ गई। इंटरेस्टिंग, लेकिन ये राज राज ही रहे। अब तुम गुड बाय एंड टाटा। वो तंजिया हंसी हंसता गन का ट्रैगल दबाने लगा। कहाँ से लम्हे में इसी लम्हे फारस अंदर दाखिल हुआ और उसकी गन वाले हाथ से पे गोली चलाई। वो तड़प कर रह गया। फारस को देखकर आयन ने शुक्र का कलमा पड़ा। भाग के फारस के पास पहुंचना चाहा, लेकिन रास्ते में ही अरबाज ने इसे जा लिया। उसकी गर्दन के गिर्द बाजू डाले। इसने गन तानी। ना ना फारस शाह, ये गलती भूल कर भी ना करना, वरना तुम्हारी ये चांद सी बीवी जाएगी जान से। गन आयन के दिल के मुकाम पर रखे वो दीवानों की तरह बोला था। इससे कुछ भी भेद नहीं था। वो पागल इंसान कुछ भी कर सकता था। नूर, छोड़ दो वरना। फारस ने एक नज़र नूर पर डाली, गन का रुख अरबाज की जानिब मोड़ा। अच्छा, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? अरबाज कहकर मार कर हंसा। हरगिज़ नहीं। अगर इसकी सलामती चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। अरबाज ने नया पैंतरा बदला। अभी वो आयन को नुकसान पहुंचाए बिना उसके सहारे से वहाँ से निकलना चाहता था। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। फारस ने इसे धमकी दी। हा हा, फारस शाह, मुझे धमकी देने की पोजीशन में हो तुम क्या? मुझे तो
वैसे भी मौत आनी है, तो जाते जाते तुम्हारी इस खूबसूरती बीवी को भी साथ ले जाऊं। अच्छा है, कंपनी रहेगी एक साथ दो शीज़ाओं की। वो कहते हुए तन से हंस भी रहा था। फारस आगे बढ़ा। लैन अरबाज ने गोली इसके पाँव के करीब चलाई। इसे करीब आने से रोका। आयन की चीख निकल गई। इसे लगा फारस को गोली लगी है। खबरदार, ये गलती ना करना। दोबारा गन आयन की कनपटी पे रखी। वो वहीं थम गई। आंखें खौफ हिरास से लिए वो फारस को देखे जा रही थी, जिसकी तरफ नज़रें अरबाज पर टिकी थी। अगर तुम पीछे ना हटे तो इस लड़की का भेजा गया, अरबाज ने धमकी दी। ज़ियान पुलिस के साथ पूरे एरिया को घेर चुका था। वो अकेला था, कोई साथी नहीं था। ज़ियान अंदर दाखिल हुआ। अंदर की पोजीशन देखते वो ठिठरा। आ जाओ ब्रो, तुम्हारी ही कमी थी। अरबाज ज़ोर से कहकर मार कर हंसा। आयन को कोई साइको ही लग रहा था। चलो शाबाश, गन फेंको और रास्ते से हटो, अरबाज ने ऑर्डर लगाने वाले अंदाज में कहा। फारस टस से मस ना हुआ। भाई गन फेंक दें, भाभी के कब्जे में है, ज़ियान ने अपनी गन नीचे रखते हुए फारस को कहा। लेकिन फारस की कहर की नज़र अरबाज से नहीं हट रही थी और निशाना भी इसके दिल का लिया हुआ था। भाई भाई, ज़ियान ने पुकारा तो इसने धीरे से गन नीचे रखी, लेकिन अरबाज से नज़र ना हटी। चलो अब रास्ता छोड़ो, बहुत सुकून से इसने अगला ऑर्डर दिया। ज़ियान साइड पर हुआ, लेकिन फारस ना हटा। हटो रास्ते से, और आयन को साथ लिए आगे बढ़ा। फारस लब बीचे ज़रा से एक तरफ हुआ और इसने एक नज़र भी नूर को ना देखा था। वो जानता था इसे देखने का मतलब वो कमज़ोर पड़ जाता और अरबाज को वहाँ से फ़रार का रास्ता दिखा देता, और इस बार वो इसे भागने नहीं दे सकता था। तुम्हारे पास आखिरी मौका है अरबाज, ख़त्म करो सब और ख़ुद को कानून के हवाले कर दो, ज़ियान ने इसे आखिरी बार समझाते हुए कहा। हा हा, ख़त्म ही तो कर रहा हूँ। जो कहानी अफ़ान की मौत के बाद भी नहीं ख़त्म हुई, अब वो इस लड़की की मौत के बाद ख़त्म। अभी इसके अल्फाज मुंह में थी कि फारस अफ़ान का नाम सुनकर अप्पे से बाहर हो गया। नीचे झुक पिस्टल उठाई और एक लम्हे की देरी किए बिना अरबाज की पिस्टल वाले हाथ का निशाना लेकर गोली चला दी। गोली लगने से इसकी बात पूरी ना हो पाई। वो ज़ख्मी हुआ तो आयन को धक्का देता वो वहाँ दरवाजे से बाहर भागा। फारस दूसरी गोली चलाता, लेकिन आयन को गिरता देखकर इसे संभालने आगे बढ़ा। अगर वो इसे न थामता तो वो लोहे की बने तार पे गिरती, जो इसके आर पार हो जाती। इसे थामते हुए इसे अपने साथ लगा गया। ज़ियान फ़ौरन अरबाज के पीछे लपका। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। वो फिर भी बचता बचाता वहाँ से छुप छुपा के निकलने की कोशिश में था। नूर ठीक हो ना, इसे अपने साथ लगाए सुकून का सांस खारिज करते हुए वो इससे पूछ रहा था। वो कुछ भी तो ना बोली, बस एक टिक से देखे जा रही थी, और फारस उसकी आंखों के मोती देखे जा रहा था। वो उसकी बाहों में थी। वो फ़ान का कातिल। आयन ने आंसू जब्त करते फारस से कहना चाहा, शिबी इसे दिमाग से निकाल दो, जस्ट रिलैक्स। फारस ने इसे टोका। वो दोबारा अपने साथ लगाए इसे। इतने में ज़ियान वापस आया। भाग गया है, ज़ियान ने दांत पीसते हुए कहा। कोई बात नहीं, ज़ख्मी है, अब नहीं बचेगा वो, फारस ने पुरसुकून होते हुए कहा। आप भाभी को घर ले जाएं और कबीर शाह और उसकी फैमिली का आज ही सदेबाब हो जाना चाहिए। एक अज़म से कहते वो पलटा था। हम पुलिस के साथ सर्च कर रहे हैं, इस बार नहीं छोड़ेगा इसे, ज़ियान इंतहाई गुस्से से कहता बाहर निकला था। फारस भी डरी सहमी आयन को बाहर लेकर आया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाता खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। इस बात से अनजान कि अरबाज ने इस गाड़ी का ब्रेक ऑयल निकाल दिया था। गाड़ी के निकलते वो दरख्त की ओर से हंसता हुआ बाहर आया। कोई नहीं बचेगा फारस शाह, अपनी सर्द मोहरियों का बदला हर एक से लूँगा, गिन गिन कर। बाजू को पकड़े वो वहाँ से निकलता चला गया। कंटिन्यू जारी है।